Hello students, in this video we will discuss about the types of fermentation. Before discussing or before starting actual point, that is types of fermentation, let me introduce you about the simple and basic idea about the fermentation and fermenter. Okay, so now types of fermentation is there. Let's start with the definition of fermentation. As we have shown in our previous video the definition of fermentation, we will quickly understand once again the definition of fermentation. Fermentation, it is used for the production of alcohol from sugar under anaerobic condition. This is the simple definition of fermentation. In different reference books, different definition of fermentation is been given, but the general idea of the fermentation, about the definition of fermentation, is the production of products or production of alcohol from the sugar under anaerobic condition, and this fermentation is carried out in the fermenter, or we can say bioreactor. Okay, so this fermenter are used to mediate biochemical reaction which are carried out by the microbial cell. Let's see the design of the typical fermenter. So this fermenter consists of a stainless steel vessel is there, and it is the closed system. Okay, this fermenter is the closed system, and in that it consists of different parts. The fermenter, if we will see the from down onwards, it consists of cooling jacket. It is used to control the temperature. See downward it has been shown, cooling jacket is there. Then next, compressed air inlet is there, means to provide the air, to provide the oxygen. Some products required air, okay, means aerobic condition, and some products are produced under anaerobic condition. So when air is been required, that time from downside, from the bottom side of the fermenter, the air is been provided. Sampling point is there. Then different types of sensors are there, like oxygen sensor is there, pH is there, temperature is there. To control the pH, to control the temperature, the sensors are been provided. Inoculation pipe is there. Inoculation pipe means to provide the inoculum, to provide or to inoculate the microbial cell. The inoculation pipe is been there. Okay, next is anti-foam. Anti-foam means what? To prevent the foam. Anti-foams are used like different oils. Okay, foam means what? When in the fermenter liquid media is been added and inoculum is added, the mixing is been there. Okay, the mixing creates the bubble formation, or we can say like bubble formation is been created. That bubble formation is known as the foam formation. Okay, so to prevent that foam, anti-foam agents are being used. Then the most important thing in this closed system, the main thing, the straight line is been shown. That straight line, it is the to that straight line at the bottom, impeller is been attached. Impeller, the function of impeller is mixing. Okay, this impeller provides the mixing of that liquid broth and microbial cell along with the nutrients. Okay, so the function of impeller is mixing of the fermentation broth. Next, if we will see towards the inward side of the fermenter, baffle is been attached. Baffle, this baffle are used to control the temperature or to monitor the temperature. So baffles are being attached to both sides of the fermenter from the inwards. Okay, from to the inside. Then culture media is added to the appropriate level of the fermenter. The culture media is been added. Then depend on the cultural condition, whether it is acidic, whether it is basic, the pH has been controlled. Okay, so this is the typical design of the fermenter. And towards the bottom side at the center, harvesting pipe is there, means your desired product
After the fermentation process has been completed, the desired product is harvested from the harvesting pipe. ओके, सो दिस इज द टिपिकल डिजाइन ऑफ अ फर्मेंटर. ऐसा एक फर्मेंटर होता है जो इम्पेलर कंसिस्ट करता है, बैफल कंसिस्ट करता है, कुछ कंट्रोल सिस्टम होते हैं जैसे पीएच, टेम्परेचर. Okay, this all the control system we are going to see in our next videos. Okay, so this is the typical design of a fermenter. Now let's start with our actual types of the fermentation. In this video we are going to discuss our three types of fermentation: batch, continuous and dual type of fermentation. Okay, so before discussing the types of the fermentation, let me tell you overview of fermenter. Okay, yes, I forget to tell fermenter and bioreactor, this term I have used initially. So fermenter and bioreactor, these are interchangeable terms. Okay, but there is slight difference between these two terms, fermenter and bioreactor. So what is that difference? Fermenter, it is used for culturing of microbial cell. If you want to culture only microbial cell, then the fermenter is been used or fermenter is been recommended. But if you want to culture all types of cells like plant cells, mammalian cells, microbial cells, etc., then bioreactors are being used. Okay, so this is the slight difference between fermenter and bioreactor. So don't be confused, these two terms are interchangeable. Getting my point? Okay, now overview of fermenter or bioreactor process. What is the fermentation? It is the complex set of reaction. Okay, fermenter के अंदर बहुत से reactions होते हैं. Specifically selected population of microorganism convert the material and energy into your final product. Okay, within a control environmental condition. Control environmental conditions कौन से होते हैं? pH, temperature, then viscosity is there, humidity is there, moisture level is there. So these are certain environmental condition. तो general process क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बायोमोलिक्यूल इनोकुलेट किया जाता है इनटू द फर्मेंटर और बायोरिएक्टर. सो अलोंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम रॉ मटेरियल्स आर आल्सो बीन एडेड विच एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर द दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रॉ मटेरियल लाइक कार्बन सोर्स होता है, नाइट्रोजन सोर्स होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब कार्बन सोर्स क्या है, नाइट्रोजन सोर्स क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, ये सब इन डिटेल हम अपने अगले चैप्टर में देखेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ द फर्मेंटर. ओके, प्लस सम डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम आर देयर, पीएच, टेम्परेचर, एजिटेशन, एरिएशन, ये सब चीज़ें भी क्या है, ये हमारा अभी इन डिटेल एक्सप्लेन करने का पॉइंट नहीं है. इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट चैप्टर, इसका अलग चैप्टर है, रॉ मटेरियल्स और कंट्रोल सिस्टम का अलग चैप्टर है, तब हम इन पे डिटेल में फोकस करेंगे. ठीक है, हम जस्ट ओवरव्यू में आपको बता रही हूँ. और ये सब ऐड करने के बाद, रॉ मटेरियल्स एंड कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करने के बाद, विद द डिजायर्ड टाइम यू गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके, ऑप्टिमम टाइम या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर सब कंडीशन प्रोवाइड करके आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. सो दिस इज ऑल आइडिया. प्लस दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है टू कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, पहला है उसमें इनोकुलम डेवलपमेंट और सेकेंड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ओके, अभी इनोकुलम डेवलपमेंट में क्या होता है? इनोकुलम इज व्हाट? इनोकुलम इज द माइक्रोबियल कल्चर. जब इनोकुलम हम ये वर्ड यूज करते हैं, इट रेफर्स टू द माइक्रोबियल कल्चर. Okay, so microbial culture that is used to perform the desired bioconversion reaction for the formation of the product, that is the development of the inoculum. मतलब microbial culture जो फर्मेंटर में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, कुछ बायो कन्वर्जन रिएक्शन कैरी आउट होते हैं
for the formation of the product, that is known as the inoculum development. तो ये inoculum कैसे होना चाहिए, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्ट्रेन कैसे होना चाहिए, इट मस्ट बी हेल्दी एंड प्योर. ओके, प्योर चाहिए और हेल्दी चाहिए. सपोज वी वांट टू प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस नाइजर से. तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन हुआ. ओके, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, एक प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ. इसके साथ आपने कोई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किया. इफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म यू आर यूजिंग, then the product will not be of pure quality. okay, or it will not be the desired product. जो हम desired word use करें तो वो desired product नहीं होगा. तो it must be pure and healthy, means disease free. Plus it must be free from any contamination. कोई contamination नहीं चाहिए. in short आप उसको pure बोल सकते हो. okay, it must be pure. तो ये सब होता है in the inoculum development. okay, तो इनोकुलम डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो मैंने आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप बोली, इट इज़ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब क्या है, इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द फॉर्म्ड प्रोडक्ट. जो फर्मेंटर में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ओके, वो प्रोडक्ट अभी हमें फर्मेंटर से निकालना है, प्यूरिफाई करना है, फिल्टर करना है. ये प्यूरिफाई करना है, फिल्टर करना है, इसी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ओके, सो दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट स्टेप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द types of the fermenter. Why I have told you this general overview of the fermenter? Just to get the idea about these three types of the fermentation that we are going to see. So I have given you brief idea about the fermenter or bioreactor process. Now here first we are going to start with the batch culture, or we can say batch fermentation. Okay, now batch fermentation, it is the closed type of this system. Okay, batch fermentation क्या है, ये closed system है. अभी closed system मतलब क्या, दो types के system होते हैं, closed and open system. क्लोज सिस्टम मतलब यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं इन द लिमिटेड अमाउंट. जितना रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, दैट इज द क्लोज सिस्टम. ऑपोजिट इज द केस विद द ओपन सिस्टम. यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं. सो बैच फर्मेंटेशन क्या, इट इज द क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम. यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं बिफोर इनोकुलेशन. मतलब फर्स्ट the fermenter is been sterilized means उसको contamination free किया जाता है. so first the fermenter is been sterilized. after sterilization nutrients are added. nutrients कौन से ऐड किए जाते हैं, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स. ओके, ये सब न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाद फिर आपका इनोकुलम ऐड किया जाता है, जो मैंने अभी आपको उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन बताई है. तो इनोकुलम ऐड किया जाता है एंड देन योर फर्मेंट, और उसके बाद आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, ओके, डिपेंड ऑन द जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के हिसाब से टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब कंडीशंस एडजस्ट की जाती है. एंड देन फर्मेंटेशन प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट इन द बैच वाइज. ओके, सो इट इज नोन एज द बैच फर्मेंटेशन. बैच वाइज मतलब जैसे प्रैक्टिकल्स में बैचेस होती है, एक बैच होने के बाद सेकेंड बैच आती है. ओके, एक बैच का प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद फिर सेकेंड बैच इंट्रोड्यूस की जाती है. तो सेम आप वो लिंक कर सकते हैं इस प्रोसेस के साथ. मीन्स एक बैच न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक बैच कंप्लीट हो गई, फिर से फर्मेंटर स्टरलाइज किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर ये आपकी सेकेंड बैच कंप्लीट हो गई. तो ये बैच वाइज ये प्रोसेस कैरी आउट की जाती है. सो इट्स बीन नोन एज द बैच फर्मेंटेशन. ओके, अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बोलूं तो द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. ओके, तो ये इसका एग्जांपल है बैच फर्मेंटेशन का. अभी नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द फर्मेंटर, सब न्यूट्रिएंट्स ऐड किया है, इनोकुलम ऐड किया है, ओके, रॉ मटेरियल्स ऐड किए हैं, अब हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है. एंड देन व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन द फर्मेंटर, वो मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पर सेल्स ग्रो होते हैं. ओके, सेल्स ग्रो इन दी डिफरेंट फेजेस. द मेजर फेज आर 4 फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज,
स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ओके, ऐसे फेजेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट टू ग्रो। लेट्स सी अबाउट द लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे एडॉप्ट टू दी कंडीशंस। ओके, वो कंडीशंस को एडॉप्ट करते हैं, मतलब कंडीशंस कौन सी कंडीशन है, कितने अमाउंट में कार्बन सोर्स है, कितने अमाउंट में नाइट्रोजन सोर्स है, पीएच कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, वो उस कंडीशंस को एडजस्ट करते, एडेप्ट करते। ओके, दिस हैपेंस इन द लैग फेज। ओके, once they adjust or once they start to adapt the conditions in the fermenter, then they go to the log phase. Okay, onto the log phase, what happened? This is the time when the cell number starts to grow. Okay, यहाँ पर cells grow होने के start करते, that is the log phase. Okay, lag phase में adaptation होता है, log phase में they start to grow. Then there is the एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में क्या होता है? यहाँ पर सेल्स रैपिडली डिवाइड होती है। ओके, दे स्टार्ट टू डिवाइड, सो दैट इज दी, इसीलिए उसे कहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। मीन्स दे एक्सपांड देयर ग्रोथ, सो दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। नेक्स्ट इज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं एंड द न्यूट्रिएंट इज बीन एंड। ओके, मतलब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो वंस द न्यूट्रिएंट्स इज बीन यूटिलाइज्ड कंप्लीटली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, मतलब स्टेशनरी हो जाते हैं। ओके, जितना उन्होंने कंज्यूम किया है उतना वो ग्रो होंगे एंड देन द ग्रोथ इज बीन स्टॉप। Once the growth has been stopped, the next step comes the death phase or the decline phase. मतलब यहाँ पर organisms उनको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, तो वो अब अपनी ग्रोथ उन्होंने स्टॉप कर दिया एंड दे एंटर्ड इनटू द डेथ फेज। सो दिस आर दी 4 फेजेस। लैग फेज में अडेप्ट करेंगे, लॉग फेज में दे स्टार्ट टू ग्रो। ओके, देन इन द एक्सपोनेंशियल फेज दे इंक्रीज द ग्रोथ, दे स्टार्ट टू डिवाइड। इन द स्टेडी स्टेट उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर दिए हैं। एक बार उन्होंने न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर दिया, अभी कोई न्यूट्रिएंट नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, तो अपनी ग्रोथ वो स्टॉप कर देंगे। फिर एक बार न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो गए, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के चांस नहीं है, तो वो लास्ट में दे विल एंटर इनटू द डेथ फेज। सो ये सब चीजें होती है इनटू द फर्मेंटर। ये सब जब ग्रोथ फेजेस कैरी आउट होते, सी द graphical representation is been shown, lag phase, then exponential phase, stationary phase and death phase. According to the flow chart you can see पहले lag phase में adaptation है, exponential में rapid growth है, stationary phase में stagnant है, straight line it indicates that there is no growth, and then जो dotted lines दिखा है that is the decline phase. So this is all about the batch fermentation, and at the same time the product is been formed, the desired product what you want, the product is been formed. Okay, so this is all about the batch fermentation. Next is your continuous fermentation. As the name indicates, continuous means here continuously what happens, here continuously the nutrients are been added and product is been formed. Okay, यहाँ पर batch नहीं है, यहाँ पर continuously process carry out की गई है, कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। एंड इट इज द ओपन टाइप ऑफ सिस्टम बिकॉज यार अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स आर बीन एडेड। एज अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स क्यों ऐड किए गए हैं? क्योंकि प्रोडक्ट कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है, कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं, सो इट इज बीन ओपन टाइप ऑफ सिस्टम. ओके, योर फ्रेश स्टेराइल मीडियम इज एडेड कंटिन्यूसली एंड दैट मीडियम इज यूज्ड बाय द बैक्टीरियल सेल for the formation of the product. Okay, means here media, bacterial culture use the media continuously and at the same rate. यहाँ पर वॉल्यूम मेंटेन किया जाता है. किस चीज़ का वॉल्यूम मेंटेन किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स जो ऐड किए गए हैं उसका वॉल्यूम एंड द बैक्टीरियल डेंसिटी वॉल्यूम और एंड द प्रोडक्ट वॉल्यूम इज बीन मेंटेन. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन. And in this technique bacteria grow continuously or rapidly. In which phase definitely they are growing to grow? They are definitely growing to grow in the
log phase. Okay, in the log phase they are going to grow. So this is the typical design of the continuous fermentation. Yes, fresh media is been added from the inlet. फ्लो रेट कंट्रोल किया जाता है, डिपेंड स्लो करना है या फास्ट करना है. एयर प्रोवाइड की जाती है बाय द एयर ओपनिंग. गैस हेड स्पेस इज देयर. कल्चर ऐड किया जाता है. कल्चर मतलब आपका इनोक्यूलम. ओके, एंड देन स्टरिंग एपरेटस इज देयर. स्टरिंग एपरेटस कौन सा है? इम्पेलर है. इट इज़ लाइक अ ब्लेड. उसके बाद आउटफ्लो है. वंस द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज बिन कंप्लीटेड, कंटिन्यूसली ऊपर से प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है और फ्रॉम द डाउनवर्ड्स आप कंटिन्यूसली ऊपर से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं और फ्रॉम द डाउनवर्ड आपका प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है. ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस. सो इट इज नोन एज द कंटिन्यूस फर्मेंटेशन. डिफरेंस क्या है अभी बैच कल्टीवेशन और कंटिन्यूस कल्टीवेशन में? डिफरेंस क्या है? सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम और वी कैन से डिफरेंशिएट किया गया है along with the advantage and disadvantage. So in batch cultivation, along with the batch, the fermentation is been carried out under certain condition. यहाँ पर conditions कौन से maintain किए जाते हैं? टेम्परेचर, pH एंड एरिएशन. एरिएशन मतलब ऑक्सीजन लेवल. ओके, और यहाँ पर बैक्टीरिया चारों फेज कवर करते हैं. चारों फेज मतलब लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, डेथ. 4 or 5th phases. Yes, lag, log, exponential, stationary and death. These 5 phases are being controlled or are being carried out in batch cultivation. And in continuously nutrients are added and there is formation of the product. यहाँ पर बैक्टीरिया लॉग फेज में ज़्यादा ग्रो होते हैं. ओके, और यहाँ पर सर्टन कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच और एरिएशन, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है. अभी बैच कल्टीवेशन का अगर एडवांटेज देखा गया तो बैच कल्टीवेशन बहुत स्पेसिफिक है. अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत यूजफुल है. प्लस कंटामिनेशन चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल भी कहा तो भी चलेगा. इट इज सेफ. ओके, प्लस देयर इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि लिए आपने जितना न्यूट्रिएंट ऐड किया है वो पूरी न्यूट्रिएंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया 5 फेज से जाती है. ओके, अगर कंटिन्यूस के एडवांटेज किए तो टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर, बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पर सब चीज़ें हो रही है. ओके, प्रोडक्टिविटी आपको हाई अमाउंट में मिलेगी. सो दिस आर द एडवांटेज. अगर बैच कल्टीवेशन में डिसएडवांटेज देखें तो इट इज़ लिटिल बिट कॉस्टली एंड मोस्ट हाई लेबर कॉस्ट है इसका. ओके, मीन्स इट इज़ बिन कॉस्टली. ओके, प्लस यहाँ पर आपको हर बैच, पहली बैच होने के बाद स्टरलाइज करना पड़ता है, फिर सेकेंड बैच कैरी आउट करनी पड़ती है. सो स्टरलाइजेशन टाइम ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायर्ड है. मीन्स हर बैच के बाद आपको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है. अगर कंटिन्यूस कल्टीवेशन में डिसएडवांटेज देखा तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर कंटेमिनेशन चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूसली सब चीज़ें हो रही है तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का कि द प्रोडक्ट इज़ बिन स्टरलाइज, प्रोडक्ट ये प्योर फॉर्म में मिल रहा है या नहीं. ओके, सो कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बैच कल्टीवेशन. लेट्स सी आवर लास्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, दैट इज ड्वेल और मल्टीपल फर्मेंटेशन. ड्वेल को ही मल्टीपल फर्मेंटेशन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये 2 or more टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड. ओके, जैसे बैच कंटिन्यूस में एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए या फिर डिजायर्ड, एक के बजाय मैं डिजायर्ड वर्ड यूज करूंगी, डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए एक या 2 स्ट्रेन यूज किए एक स्पेसिफिक स्ट्रेन यूज करते थे हम. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑर्गेनिक सिट्रिक एसिड का कहा. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड जस्ट 1 स्पेसिस इज बीन यूज, दैट इज एस्पेजिलस नाइजर. तो ये स्पेसिफिक था, राइट. यहाँ पर 1 स्ट्रेन यूज किया गया था बैच और कंटिन्यूस में. लेकिन ड्वेल मल्टीपल फर्मेंटेशन में 2 या फिर more than 1 type of microorganism are used, so it is known as the multiple fermentation. यहाँ पर 1 organism, क्यों 2 टाइप के, why more than 1 organism is used? The reason behind this is because 1 organism is unable to form the desired product. ओके, एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो फॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए सेकेंड ऑर्गेनिजम्स इनोक्यूलेट किया जाता है. कैसे इनोक्यूलेशन किया जाता है इसका?
first microorganism is inoculated in media and allowed to grow, and then second microorganism is inoculated in media for the product formation. Okay, पहला microorganism क्या करता है, it grow, and जब आप second microorganism it inoculate करते, it inhibit the, sorry, it enhance, not inhibit, it enhance the product formation. ऐसी एक कंडीशन है, पहले आप पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट कीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए, और फिर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट कीजिए. सेकेंड कंडीशन ऐसी है कि कुछ समय समटाइम्स बोथ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनोकुलेटेड साइमल्टेनियसली एंड देन फर्मेंटेशन इज बीन carried out. Okay, so this is about the dual fermentation. अगर एग्जाम्पल मैं आपको dual fermentation का बोलूँ तो vinegar production is been carried out with the help of this dual fermentation. Okay, so this is all about 3 types of fermentation. Thank you.